हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अमर सिंह राठौड़ और हिस्ट्री ऑफ मराठास के बारे में। जोधपुर महाराजा गज सिंह हैड 3 sons. Amar Singh was the eldest son, following by Jaswant Singh, and Achal Singh was the youngest. Had died during the childhood itself. Amar Singh Rathod was mighty and brave. Many Rajput youngsters of his nature was his companion. Ghazi came under the influence of a person named Anara and deprived Amar Singh of succession and forced him out of the country. Amar Singh Rathod went to serve the Mughal Emperor. Shahjahan was influenced by his bravery and adorned him with the title of Rao. अमर सिंह जो है जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। उसमें सबसे बड़ा अमर सिंह था, दूसरा जसवंत सिंह और तीसरा जो था वो अचल सिंह था। अचल सिंह जो है कि बचपन में ही मर गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी व निडर था। उसके साथ जो है उसी के स्वभाव के कई युवक जमा हो गए थे। गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर अमर सिंह को राज्याधिकार से जो वंचित कर दिया और उसे देश से निकाल दिया। अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह की सेवा में जा पहुंचा, जहां उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे राव की उपाधि दी। Once Amar Singh Rathod remained absent from the Mughal court for 15 days. When Emperor Shahjahan asked the reason for his absence, he answered with pride that I had went to hunt and therefore could not attend the court. As far as giving fine in considered, as my sword is my only property. Bakshi Salawat Khan was sent to collect fine from him. Amar Singh refused to pay the fine. The emperor ordered Amar Singh to come immediately. Amar Singh Rathod obeyed the order and greeted the emperor in Diwan-e Khas. As soon as he reached there, Salawat Khan addressed him as mannerless. The Amar Singh couldn't bear these words and he attacked Salawat Khan and killed him with his sword. After this, Amar Singh attacked Mughal Emperor Shahjahan, but somehow he saved himself. Terrified, Shahjahan ran away to Janana Mahal. Amar Singh's brother-in-law betrayed him and fraudulently attacked and killed him in temptation of a grant. Hearing this, the chief and soldiers of Amar Singh become against and immediately they proceed toward Delhi and enter into Shahjahan's residence. Through the Bukhara gate, Rathods were negligible in numbers as compared to Mughal army. Therefore, all the Rathods received martyrdom while confronting the enemy. Red Fort's Bukhara gate was closed using bricks. Some day, and from that day, the gate becomes famous in the name of Amar Singh's Gate. The gate remained closed for many years and was opened in 1809 CE by the order of British officers named George Still. एक बार अमर सिंह राठौड़ जो थे वो 15 डेज तक मुगल दरबार में नहीं गए।
तो बादशाह शाहजहाँ ने उनकी उनसे जो है उनकी अनुपस्थिति का कारण पूछा। तो अमर सिंह ने स्वाभिमान से के साथ में उत्तर दिया कि मैं केवल शिकार के लिए गया था, अतः दरबार में नहीं आ सका। जहाँ तक जुर्माना अदा करने की बात थी, तो उन्होंने कहा मेरे मेरे पास तो मेरी तलवार है और वही जो है वो मेरी संपत्ति है। जुर्माना वसूल करने के लिए बख्शी सलावत खान को उसके पास अमर सिंह के पास भेजा। अमर सिंह ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। बादशाह ने अमर सिंह को तुरंत हाजिर होने का आदेश भिजवाया। अमर सिंह ने राठौड़ ने आदेश का पालन किया और दीवाने खास में पहुंचकर बादशाह का अभिवादन अभिवादन किया। वहां पहुंचते ही दरबार में उपस्थित सलावत खान ने उनको गंवार कह दिया। गंवार यानी कि मैनरलेस कह दिया। यह शब्द सुनकर अमर सिंह जो है सुन नहीं सके और उन्होंने सलावत खान को पर आक्रमण किया और उनके सीने पर कटार उतार दी। उसके बाद अमर सिंह ने बादशाह शाहजहाँ पर आक्रमण कर दिया, किंतु शाहजहाँ बच गए और भयभीत होकर वो जनाना महल में भाग गया। अमर सिंह के साले अर्जुन गौड़ ने इनाम के लालच में धोखे से अमर सिंह पर आक्रमण कर उसे मार दिया है। यह सुनकर के जो अमर सिंह के सरदार और सैनिकों का जो है खून खोल गया और उन्होंने जो है उसी समय दिल्ली जाकर शाहजहाँ के निवास लाल किले में के बुखारा गेट में प्रवेश किया। राठौड़ों की जो संख्या थी वो बहुत कम थी और मुगल सेना की जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसलिए जो सभी राठौड़ जो थे वो इसमें वीर गति को प्राप्त हुए, उसमें मारे गए। वो लाल किले का जो बुखारा गेट था उनको उसी दिन जो है ईंटों से बंद कर दिया गया और उसी दिन से वह द्वार जो है वो अमर सिंह की फाटक के नाम से, अमर सिंह की गेट के नाम से जाना जाता था। और यह जो फाटक है वो अनेक वर्षों तक बंद रही और 1809 में ब्रिटिश ऑफिसर्स जॉर्ज स्टील के आदेश पे जो है उसे वापस खोला गया। फिर हिस्ट्री ऑफ मराठास। द राइज ऑफ मराठास पावर वॉज नॉट द वर्क ऑफ अ सिंगल पर्सन, इंस्टेड ऑफ इट टुक प्लेस at the special time, which was a consequence of some extraordinary circumstances. Deccan Plateau, which is situated in the southwestern part of India, is known as the present Maharashtra. महाराष्ट्र की जो शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति का कार्य न होकर एक विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का परिणाम है। भारत के साउथ वेस्ट भाग में डेक्कन प्लेट्यू में जो है का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, महाराष्ट्र अभी जो है वो महाराष्ट्र कहलाता है। एज मोस्ट ऑफ दिस पार्ट इज अ प्लेट्यू, द रेजिडेंट ऑफ दिस प्लेस हैव बीन लेबोरियस एंड ब्रेव। दिस residents of These residents of Maharashtra, who are renowned as Marathas, are short in height and sound physically built. They were skilled in guerrilla warfare strategy. They largely avoided upon battle and used to attack their enemy in a hidden way and used to obtain money from them. The religion reforms and bhakti movement which took place in the 15th and 16th century further strengthened social unity. In the south, this religious movement based on the masses was led by saints and intellectuals like Tukaram, Ramdas, Eknath, Vaman, Pandit, and other. This movement was against discrimination, caste system, and other evil social practices. And it showed the path of devotees
to attain God. Marathi as a language was very practical and easy. अधिकांश भाग जो है प्लेटियो होने के कारण वहाँ के निवासी परिश्रमी, लेबोरियस और ब्रेव होते हैं। मराठा कहे जाने वाले महाराष्ट्र वासी जो है वो हाइट में छोटे होते हैं और मजबूत शरीर वाले होते हैं और गुरिल्ला युद्ध में कुशल होते हैं। वे खुले युद्ध में से वो भरसक बचते हैं और अपने दुश्मनों को छिपकर वार करते हैं। 15th और 16th सेंचुरी में धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन में ने सामाजिक एकता को और अधिक सुदृढ़ बनाया। साउथ में जनसाधारण आधारित कई धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन, पंडित आदि जो संत हैं और जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने किया था। यह आंदोलन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सिस्टम और जो दूसरी जो समाज में बुराइयां फैली हुई थी उनके विरुद्ध थी, जिसने सभी के लिए भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। मराठी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सरल और व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल लैंग्वेज है वो और इजी लैंग्वेज है। थैंक यू।